A very warm welcome to all the students, teachers, and esteemed colleagues from Tata Steel Foundation. I, Ms. Monmi Barwa from TERI, welcome you all. Today, we are gathered here for this virtual expert speak session on waste and climate change for students and teachers as part of the project, The Green School. As you all must be aware, and we have had sessions in the past. So, waste is nothing but any discarded or abandoned material. And, this is a very crucial topic. And for this, we have our expert, which I'll introduce shortly. So we are here for this, we have so many issues on waste, on environment as a whole, on forest and biodiversity, or on energy. So keeping this in mind, TERI and Tata Steel Foundation envisioned this Green School project with a focus in 2017 on augmenting the capacities of students from classes 6 to 8 through curriculum linkages, action projects, and capacity building activities by learning the basics on 4 environmental themes, that is energy, water, forest and biodiversity, and waste. The project so far has been successful in promoting environmental consciousness amongst the students. However, we feel there is a need to interlink the themes, that is energy, water, forest, and biodiversity, and waste with climate change and SDGs. So even considering the UN theme, Decade of Action 2021 to 2030 in mind, phase 4 of the Green School aims to tap the energy of students and teachers across project locations for climate action at school level. In this context, a series of expert speak session for teachers and students in the form of webinars have been planned to further train on the themes interlinking with climate change and SDGs to cultivate the values and knowledge to live more sustainable lives. As I've mentioned, we are gathered here for the virtual expert speak session on waste and climate change for students and teachers as part of the Project Green School. And this interactive workshop, it aims to orient students on ways to find value in waste and interact with our expert on issues of waste along with an opinion poll. And we are very fortunate to have with us today our waste expert, Dr. Shilpi Kapoor. Thank you so much, ma'am, for joining in today. We are very grateful to have you. Moving on to the session, in order to set the context and give you an overview about the issue, we also have with us today Ms. Neha, who is a fellow and area convener at the Environment Education and Awareness area at TERI. Ms. Neha, as you all must be aware, is also the project in charge, and so she is here to give you an overall view of the issue and to set the context. So over to you, Ms. Neha. Thank you, Monmi. हेलो फ्रेंड्स, बच्चों कैसे हो? अच्छा, जैसे भी मौनमी मैम ने बहुत अच्छे से बताया हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में, एंड इस प्रोजेक्ट के बारे में हम सबको पता है द ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट जो 2017 में शुरू हुआ था, और अब हमें बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में जो कि वेस्ट से रिलेटेड हैं, एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में अच्छे से पता है। हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, खुद भी करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, टीचर्स के साथ करते हैं, कम्युनिटीज़ में हम चेंज ला रहे हैं। हमने हर्बल गार्डन्स बनाए हैं, हम अपने पेपर वेस्ट को, वेट वेस्ट यानी गीले कूड़े को कंपोस्ट करते हैं, हम अपने वेस्ट पेपर को रिसाइकिल करते हैं, उससे रिसाइकिल पेपर भी बनाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बट हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट क्या ये करना काफ़ी है और क्यों कर रहे हैं? क्या वो क्लाइमेट चेंज, जो कि हम जलवायु परिवर्तन के बारे में इतनी बातें करते हैं, उससे वेस्ट कैसे लिंक्ड है? इससे पहले जो सेशन हुआ था जिसमें डॉक्टर सुनील पांडे जो कि डायरेक्टर हैं टेरी के आए थे, और उन्होंने आप सबको बताया था वेस्ट का लिंकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ। कौन सा गोल था वेस्ट का? इफ यू रिमेंबर क्विकली जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखेंगे कौन सा गोल था वेस्ट वाला जिसके साथ उन्होंने लिंक किया था? कम ऑन, आपको पता है जब मैं आती हूँ तो मैं तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछती हूँ और आपको चैट विंडो रेडी रखनी पड़ती है और उसके अंदर फटाफट टाइप करना होता है। तो
माना थोड़े दिनों बाद आ रहे हैं, बीच में एग्जाम्स आ गए थे, उससे पहले दिवाली की छुट्टियों में सब बिजी थे, तो थोड़ी भूल जाएंगे, है ना? कम ऑन, कौन सा सस्टेनेबल गोल था? इतना गूगल नहीं करना है किसी को, नहीं याद है तो लिख दो नहीं याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास शिल्पी मैम है, वो हमें समझ बता देंगी, है ना? चलिए, still I can't see any number coming. Sustainable development goal कितने होते हैं? 17 goals होते हैं। हमने एनर्जी के बारे में बात की थी, तब हमने कौन से गोल के बारे में बात की थी? हमने फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी में बात की है, हमने वेस्ट के बारे में बात की है। यह सबके दिमाग में अभी सिर्फ विंटर हॉलीडेज चल रही हैं। क्यों क्यों पढ़ा रहे हैं? स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, है ना? सोच रहे हैं। Still I have not received any response. बच्चों, अपनी चैट विंडो नहीं खोल रखा है आज? और रेज योर हैंड सो दैट आई कैन अलाउ यू टू स्पीक, अगर चैट विंडो नहीं चल रहा है तो। फिर हम क्विज कैसे करेंगे? तो मॉर्निंग मैम ने बताया यू कैन यूज दिस चैट बॉक्स, यहाँ पर यस, ये वाला यूज कीजिए और मुझे यहाँ बताया दीजिए कि कौन सा सस्टेनेबल गोल के बारे में जब सुनील सर आए थे उन्होंने बताया था। शिल्पी मैम क्या सोचेंगे, बच्चों को कुछ नहीं याद है? नहीं याद है मैम, बताएंगे हम। ये सब के सब होल्ड पर म्यूट। यस मैम, प्रतीक साहू, यस मैम, बताइए गोल कौन सा था? 1 2 3 4 17 गोलों में से कौन से गोल थे? नहीं याद है तो नहीं याद है, कोई बात नहीं, हमें लर्निंग्स याद रखनी चाहिए। अगर गोल नंबर भूल गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस गोल में क्या था, हमने क्या सीखा था, वो इम्पोर्टेंट होता है। चलिए कोई बात नहीं, हमें अगर गोल नंबर नहीं याद है, नॉट एन इश्यू, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। दैट वाज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12, ठीक है? तो वेस्ट होता क्या है, उसको हमें वेस्ट हम सबको पता है, जो चीज़ काम की नहीं है वेस्ट है, डिस्कार्डेड है, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट एक्चुअली वो डिस्कार्डेड एंड वेस्ट है। तो जैसे वेजिटेबल पील्स हैं और गिफ्ट आइटम है, मतलब गिफ्ट आइटम देने से पहले प्यारा सा हम सबसे सुंदर रैपिंग पेपर लाते हैं, उसे रैप करते हैं, देते हैं, और जैसे ही गिफ्ट खोलते हैं वही सुंदर सा रैपिंग पेपर क्या बन जाता है हमारा? वेस्ट, राइट? और उसे डस्टबिन में डाला तो क्या उसकी जर्नी सिर्फ इतनी थी कि आप उसे प्यार से ढूंढ कर लाए, आपने अपना गिफ्ट रैप किया, आपको किसी को देना था, उसने उसे अनरैप किया, उसे कूड़े में फेंक दिया? और क्या कुछ हो सकता है ऐसा? क्योंकि वेस्ट तो बहुत तरीके के होते हैं। हमने सीखा है कि वेस्ट डिपेंड करता है कि कहाँ से वो जनरेट हो रहा है। घरों से हो रहा है तो डोमेस्टिक, अगर इंडस्ट्री से हो रहा है इंडस्ट्रियल, अगर हॉस्पिटल या क्लिनिक से हो रहा है तो मेडिकल, है ना? अगर न्यूक्लियर प्लांट से हो रहा है तो न्यूक्लियर। और वेस्ट किस और तरीके में डिवाइड होता है, किस काइंड का वेस्ट है, मतलब गीला है, सूखा है, सो वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, हजार्डस है या नॉन हजार्डस है, बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये सब के बारे में हमने बात करी है ना? तो हमें पता है वेस्ट उनके सोर्सेज और टाइप से डिफाइन होता है, उसकी एक जर्नी होती है, पहले वो कलेक्ट होता है, फिर सेग्रीगेट होता है, सेग्रीगेट मतलब गीले कूड़े को, सूखे कूड़े को, सूखे कूड़े में वो कागज है, मेटल है, क्या है उसके अंदर, उसे अलग अलग करते हैं, कांच को अलग करते हैं, ग्लास बॉटल्स को, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर वो कागज है तो उसे हम रिसाइकिल करेंगे, ग्लास है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जा सकता है रीयूज होने के लिए, मेटल है तो वो ट्रांसपोर्ट होगा। और अगर वो न्यूक्लियर वेस्ट है तो उसको कैसे डिस्कार्ड करेंगे, उसे अलग करेंगे, या हमारा जो गीला कूड़ा है उसको क्या करेंगे, उसका कंपोस्ट बनाएंगे, राइट? और फिर जो एंड में बचता है उसे डिस्पोज करते हैं। तो होता क्या है, क्या कूड़े की सिर्फ यही कहानी है? क्या उसमें कोई वैल्यू होती है? क्योंकि हमने बहुत सारे कंपटीशन करे ना, वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट। व्हाट इज वेल्थ? वो सुंदर सा हमने कुछ जो बनाया है, क्या वो सच में वेल्थ है? तो चलिए हम जानते हैं शिल्पी मैम से। शिल्पी मैम बताएंगी हमें जो कूड़े में से क्या हम वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं तो क्यों निकालनी है, क्यों ज़रूरी है? क्या अर्थ पर स्पेस खत्म हो गई है क्या? या हमने सब यूज एंड थ्रो के कल्चर में थोड़ा सा यूज किया, फेंक दिया, अब हम बॉल पेन यूज करते हैं, हम इंक पेन नहीं यूज करते हैं, हम कितने सारे पेन फेंकते हैं, करते हैं ना?
कॉपी यूज करी, खाली पेज है तो क्या हुआ, अब तो नई क्लास में। क्या कभी हमने सोचा कि जो ब्लैंक पेजेस हैं उनको निकालें, एक साथ बाइंड करें, रफ कॉपी बना लेते हैं ना। प्रैक्टिस करने के लिए भी तो जरूरी होती है ना रफ कॉपी की। तो डू वी एवर थिंक, सोचते हैं हम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, बट जो हम काम कर रहे हैं उससे हम एनवायरनमेंट कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और अगर हम कुछ और एडिशनल कर सकते हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो और भी अच्छी चीज़ें हों, और जो हम अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं ना उसके बारे में दूसरों को ज़रूर बताना चाहिए। तो दूसरों को लगे अच्छा जी ये कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, और उससे क्या होगा, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी और हमारी अर्थ प्रोटेक्ट हो जाएगी, है ना। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो विद दिस थिंग, मैं डॉक्टर शिल्पी कपूर, जो कि मेरी एक्स कोलीग हैं, वो हमारे साथ टेली में थी। शी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, और हम सबसे इतने शॉर्ट नोटिस पर जुड़ रही हैं, तो उसके लिए थैंक यू शिल्पी for joining us. I would first hand over to Monmi to formally invite you, and then over to you for your session. Thanks, Thank Neha. you so much. Thank you, Neha. Thank you for setting the context. And I hope that students, आप लोग please अपना chat box जरूर use कीजिएगा, so that it becomes interactive, and we also can have your feedback as well. So please आप लोग please अपना chat box use कीजिएगा. And so thank you again, Miss Neha. And moving on to the technical session, as Neha has mentioned, we have with us Dr. Shilpi Kapoor. She's a waste expert, and who would be talking about finding values from waste. Let me give you a brief introduction about Dr. Kapoor. She is a trained economist and has over 13 years of research experience in the field of environment and natural resource management. One of her key areas of expertise is waste management and circular economy. Until recently, she was working as a senior fellow in the Environment and Waste Division at TERI. After having worked in TERI for over 12 years, Dr. Kapoor has recently moved on and will be joining an environmental consultancy cum research organization very soon. And prior to joining TERI, Dr. Shilpi completed her PhD economics from Washington University in St. Louis, USA in 2008. Dr. Shilpi has worked on multiple projects and research assignments for bilateral and multilateral organizations, industry, and different ministries and states in the government of India on a wide range of issues, and has coordinated and managed large multi-team long-duration projects funded by international organizations such as Department for International Development and Ministry of Foreign Affairs, Norway. We are very grateful to have you, Dr. Kapoor, today. And over to you, ma'am. Thanks, Monmi. Is my screen visible? Yes, yes, it Okay, is. I'm sorry about this small pop-up which is refusing to go. I tried everything, so I think we'll have to bear with this through all through the presentation. It says caps lock is on. It's just not moving away. So I'm sorry for Okay. that. Ma'am, If that's you all right. We do not see it right now. we Maybe you don't can see put it, it in, yeah, maybe you can put it in on slide mode. I put it on slide mode. So if you can't see it, very good. Then that's good. Okay. Uh, ठीक है. So मैं चलूँ आगे? yeah, yeah. ओके चलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. आप लोग अपनी आफ्टरनून में बैठे हो, रिलैक्स नहीं कर पा रहे. नेहा मैम ने छुट्टियों में आपके लिए एक सेशन रख दिया है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल फॉर यू, सो दैट एट द एंड ऑफ 1 hour यू कैन से कि हमने कुछ सीखा है और हमें कुछ पता चला है. काफ़ी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता भी हो सकती हैं क्योंकि आपके 2 सेशंस ऑन वेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस सेशन में आपको बताऊं कि वेस्ट से कैसे वैल्यू निकलती है एंड हाउ that generation of that value also leads to benefits in the form of climate change mitigation aspect. तो अब ये देखिए, आपको मैंने यहाँ पे 6 पिक्चर्स दिखाई हैं. अब बताओ आप लोगों में से आप लोगों को ये फेमिलियर लग रही है? पहले में क्या कर रखा है कि एक पुराना या Sorry, ma'am, I think the slides are not moving now. We can only see the first slide. I have moved, Moni. Do you want to show the presentation from your end, Neha? Sure, yeah, now we can see. Because वो slide show में फिर नहीं हो रहा. रुको मैं दोबारा कर रही हूँ. Yeah, or else we can
share the screen. If you want to share, then I can stop sharing it. Yeah, I'll do Okay, that. maybe that's better then. Sure. Yeah. Can you see my slide? Yeah, I can see. Should I move to the next one? Yeah, move to the next one. Okay. Yeah. So बच्चों इसमें मैं क्या आपको दिखाना चाह रही हूँ, कोई मुझे बताना चाहेगा? इसमें हमने 6 पिक्चर्स दिखाई हैं। पहली पिक्चर में मैंने दिखाया है कि कप, जो आपका डिस्पोजेबल कप होता है, उसको लेके उन्होंने, और कप को लेके और पेपर को लेके, वेस्ट पेपर को लेके एक डॉल बनाई है। एक सेकंड में क्या दिखा रहे हैं कि पुरानी आपकी जैसे मिनरल वाटर बॉटल आप लेते हो, उसको बीच में से कट करके उसमें थोड़ा सा सॉइल डाल के आप प्लांट लगा सकते हो। थर्ड में दिखाया जा रहा है कि जो वेस्ट प्लास्टिक है वो एक्चुअली रोड मेकिंग में यूज होता है। तो आजकल काफी जगह रोड बन रही है जिसमें वेस्ट प्लास्टिक यूज होता है, एंड वो प्लास्टिक वो भी होता है जो डिफिकल्ट टू वैसे रिसाइकल होता है, तो उसको क्रश करके रोड मेकिंग में यूज किया जाता है, और उसकी प्रॉपर्टीज भी काफी अच्छी होती हैं। कहते हैं जो प्लास्टिक वेस्ट से रोड्स में प्लास्टिक वेस्ट गया है एज वन ऑफ द कंपोनेंट्स, दे आर मोर ड्यूरेबल। सो मॉनसून वगैरह में भी वो इतनी जल्दी ढह नहीं जाती हैं। फोर्थ पिक्चर में दिखाया गया है कि पुरानी कांच की बोतल को आप उसको सुंदर सा एक हैंडी आर्टिफैक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो। तो उस पर रोप वर्क करके, थोड़ा सा कलर करके आप उसका सुंदर सा एक आर्टिफैक्ट हैंडीक्राफ्ट टाइप बना सकते हो। फिफ्थ में दिखाया जा रहा है कि जहाँ पे वेस्ट इकट्ठा होता है, जैसे लैंडफिल पे या कोई डंप पे, वहाँ बहुत सारे स्कैवेंजर्स, रैट पिकर्स हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे मटेरियल दिख रहा है जिसका एक वैल्यू है। सो वो वेस्ट है हमारे लिए शायद, बट उनके लिए वो वेस्ट नहीं है, वहाँ पे वैल्यू दिख रहा है। कई चीजें उनको एक्सप्लिसिटली दिख रही है जिसको वो बेच के, सेल करके उनको पैसे मिल सकते हैं। कई चीजें उनको ऐसे लग रही है कि वो उसको खुद यूज कर भी हो सकता है कि धो धा के यूज करना चाहें। लास्ट पिक्चर में आपको एक बहुत सिंपल वेज में बोला गया है कि आपके पास चीजें हैं, जैसे एम्प्टी बॉटल्स हैं, आप उसको रीयूज करो, कि डिफरेंट वेज में रीयूज करो। अगर आपके पास एम्प्टी बॉटल है, इट कैन बी यूज्ड एज अ पेन स्टैंड, इट कैन बी यूज्ड एज अ पॉट, इट कैन बी यूज्ड इवन टू मेक कैंडल्स, इट कैन बी एनीथिंग। सो बेसिकली दैट देयर इज वैल्यू इन वेस्ट। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हम वो वैल्यू को फाइंड करें, उसको टैप करें और उसको फिर यूज करें। वैल्यू सीधा ये भी हो सकती है कि सपोज आपको एक पेन स्टैंड खरीदना था, तो आप मार्केट में खरीदने जाओगे, उसकी जगह आपके पास कोई पुराना कंटेनर है, ग्लास बॉटल है, जैसे यहाँ इमेज में दिखाया गया है, आप उसको डेकोरेट करके या ना डेकोरेट करके उसको एज अ पेन स्टैंड यूज करो। सो आपको एक पुराना आइटम जो शायद आपके अब यूज में नहीं था, शायद आप उसको, मम्मी को आपने कहा था कि वो तो मेरे लिए वेस्ट है, खाली बॉटल है, अब वो आपको एक वैल्यू दिखा रही है। एट द सेम टाइम आप पेन स्टैंड पे अगर खरीदने जाते, आपकी मम्मी को पैसे स्पेंड करने पड़ते, वही पैसे सेव हो रहे हैं। सो मम्मी के लिए भी वैल्यू है कि वो पैसा सेव हो रहा है। सो देयर इज वेल्थ इन वेस्ट। ओके, एनी क्वेश्चंस? Neha, how does it work? Do students ask questions during or later on? Actually, Dr. Kapoor, they have raised a few concerns, I mean questions, and the chat box that we can take it up later. Okay, okay. Then let me go through the presentation, and when required, we can refer back to the slides. Right. Okay, right, sure. Okay. Next slide, please. सो वेस्ट एज एन इशू, एज आई सेड, आपको बहुत मतलब आई मीन 2 एक्सपर्ट सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आप लोगों को पता भी है, बिकॉज आप लोग सब घर में वेस्ट जनरेट करते हो। किचन में जनरेट होता है, आपके स्टेशनरी आइटम से जनरेट होता है, पुराने कपड़ों से जनरेट होता है। सो ग्लोबली मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वेस्ट आर जनरेटेड एनुअली। इवन डेली नंबर्स ऑफ वेस्ट जनरेशन आर एक्सट्रीमली हाई, मतलब आप सोच ही नहीं सकते। एंड अ कंट्री विच इज डेवलपिंग सो फास्ट लाइक इंडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट है, जैसे अभी नेहा ने मेंशन भी किया था। So we have industrial waste, we have municipal solid waste, we have construction demolition waste. आजकल इतनी जगह जगह में, सिटीज में, टाउन्स में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है। अगर पुरानी कंस्ट्रक्शन को ब्रेक करके हो रही है, वो CND वेस्ट जनरेट करता है, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन। अगर नई भी हो रही है, उसमें भी काफी कुछ कंस्ट्रक्शन वेस्ट जनरेट होता है। पैकेजिंग, प्लास्टिक पैकेजिंग, पेपर पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, हम लोगों के पास पुराने हेडफोन आ जाते हैं, फोन भी हम उसको, हमारे लिए कई बार वेस्ट हो जाता है कि नया फोन आ गया घर में। एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर हैजार्डस, नॉन हैजार्डस वेस्ट एंड बायोमेडिकल वेस्ट. The good part is that much of this waste actually has a value if we can recycle it and reuse it.
बट उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें वेस्ट को सेग्रीगेट करना है। अगर हम सेग्रीगेट नहीं करेंगे, सब कुछ एक साथ डंप कर देंगे, तो वो वैल्यू कम होती जाएगी। ये नहीं होगा कि उसकी वैल्यू नहीं होगी, पर सपोज से आपने एक प्लास्टिक बैग, एक आपने अपने वेट कचरे में जो मम्मा ने सब्जी बनाई का वो वेजिटेबल और फ्रूट का पील निकला, वो एक बिन में है, और उसी में आपने एक अपना कोल्ड ड्रिंक पिया या कोक का बॉटल पिया, वो डाल दिया, वो गंदा हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा। सो उसको पहले क्लीन करना पड़ेगा टू बी एबल टू रिसाइकल इट। So इसीलिए many other forms of many other waste items also, if you don't segregate it across different categories or at least wet and dry, तो वो recycle और reuse होना बहुत मुश्किल है। And also it has to be, once you have segregated, somebody has to come and collect it, तभी वो reuse या recycle पे जाएगा। unless and until आप खुद ही waste को reuse कर रहे हो, जैसे मैंने पेन स्टैंड का आपको एग्जांपल दिया, from a glass container or a bottle. Most of us are unaware actually of this need to segregate waste, but I'm sure these sessions and their interaction through this green program is making you aware of this. If segregation is actually the key. Segregation is the key to better waste management. Segregation is the key to generating value out of waste, wealth out of waste. Segregation is also the key, which is also the key thing which will determine कि जो एक्चुअली वेस्ट है उसका एंड क्या होगा, क्या वो रिसाइकल होगा, रीयूज होगा, डंप होगा, क्या होगा। एंड उसका देन अलग अलग इम्प्लीकेशन होता है क्लाइमेट चेंज में, जो मैं नीचे आगे आपको बताऊंगी। ड्राई वेस्ट मैंने आपको बता दिया कि कंटामिनेट नहीं करना चाहिए। देन कम्स द क्वेश्चन डंपिंग। डंपिंग क्या होता है कि आपने किधर भी डंप कर दिया, आप बाहर मार्केट में घूम रहे हो, जो खाया कचरा कहीं पे भी डंप कर दिया, या घर में हमने जनरेट किया, नीचे जाके डंप कर दिया, या हमारे घरों से जिसने कलेक्ट किया, जो हमारा वर्कर्स आता है या गार्बेज कलेक्टर आता है, उसने कलेक्ट किया, उसने नीचे जाके डंप कर दिया। सो डंपिंग इज वेरी इजी, लिटरिंग इज वेरी इजी। एंड कई आइटम्स ऐसे भी होते हैं वो लिटर करने भी बहुत आसान है, कि आपने एक छोटा सा टॉफी खोली, मेलेडी खोली, एक्लेयर खोली, वो खा ली, अब उसका वो जो उसका रैपर है बहुत कम होगा कि हम उसको साथ लेके जाएंगे और डस्टबिन में डालेंगे। हमारी नेचुरल टेंडेंसी कई बार होती है खाया और रैपर फेंक दिया। तो कई टाइप्स ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग और अदर कई वेस्ट कैटेगरीज होती है, तो बहुत इजी टू थ्रो अवे एंड डंप होता है। बट क्या होएगा इस वजह से, टू रिकवर वैल्यू आउट ऑफ दिस waste then becomes very difficult. And also in general recovering value out of waste can be costly. It depends कि आप कैसा वैल्यू रिकवर करना चाह रहे हो। आपसे प्लास्टिक का अगर एक कोई प्रोडक्ट है, आप उसको रिसाइकल करके ओरिजिनल पॉलीमर जिससे वो प्लास्टिक प्रोडक्ट बनता है वो चाह रहे हो, या आप प्लास्टिक के प्रोडक्ट को आप मेल्ट करके किसी और वे में यूज करना चाह रहे हो और प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, या आप प्लास्टिक को कोई वेस्ट प्लास्टिक प्रोडक्ट है या कोई और तरह का भी वेस्ट है, आप उसको और बेटर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, से एन आर्टिफैक्ट और एनीथिंग। सो इट डिपेंड्स। सो रिकवरी ऑफ वैल्यू फ्रॉम वेस्ट कैन बी costly, but it is not always costly. And if the waste is generated, segregated, collected well, actually generation of value is not very difficult and not very costly. ऑल्सो वी हैव टू नोट कि जब वेस्ट मटेरियल की जो वैल्यू निकलती है वो सारे वेस्ट की सेम नहीं होती। तो कोई वेस्ट आइटम से आप कोई चीज बना सकते हो तो वो आपको एक वैल्यू देगा, कोई वेस्ट आइटम से आप कुछ बना सकते हो। सो वैल्यू ऑफ वेस्ट मटेरियल डिफर्स फ्रॉम वन फ्रैक्शन ऑफ वेस्ट टू अनदर फ्रैक्शन ऑफ वेस्ट। सो उसमें क्या होता है कई बार कि सपोज देयर इज अ रॉ मटेरियल जिससे चीजें बनती हैं। सो से एक कोई मेटल है, उसकी मार्केट में प्राइस बहुत लो है, तो जो वो मेटल को यूज करके प्रोडक्ट्स बनाती है जो कंपनी, वो कहेगी मार्केट में तो इस मेटल की प्राइस इतनी कम है, मैं नया मेटल मार्केट से लूंगी और बनाऊंगी। तो उसको इंसेंटिव भी नहीं रहता कि जो यूज्ड मेटल अगर रिसाइकलिंग से आ रहा है मैं उसको यूज कर लूं। सो इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ वर्जिन होता है जो न्यू मटेरियल होता है, जो सेकेंड हैंड नहीं होता, सेकेंडरी नहीं होता। ऑल्सो कई मटेरियल की रिसाइक्लेबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, कईयों की नहीं होती। सो अगेन अगर आप प्लास्टिक एज एन एग्जांपल लो, प्लास्टिक में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स होते हैं, सम आर इजी टू रिसाइकल, सम आर नॉट इजी टू रिसाइकल। देन कम्स द क्वेश्चन कि हमें क्यों कन्वर्ट करना है वेस्ट को, वेस्ट से वैल्यू क्यों निकालनी है। पहली चीज, अगर हम वेस्ट से वैल्यू नहीं निकालेंगे, वेस्ट मिसमैनेज हो जाएगा। जब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे, रीयूज नहीं करेंगे, रिसाइकल नहीं करेंगे, तो वो मिसमैनेज होगा। मिसमैनेज क्या होगा, वो लिटर्ड मिलेगा,
कई लोग उसको जहाँ इकट्ठा होगा जला देंगे या कहीं पे जाके डंप कर देंगे। सो जैसे लैंडफिल साइट्स होती हैं, GBPs होते हैं, गार्बेज वनरेबल पॉइंट, बिकॉज अगर कोई हम वैल्यू नहीं निकालेंगे तो वो वैसे ही मिलेगा हमें। ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस, तो क्या होगा, लैंड पोल्यूशन होगा, आपका वाटर का पोल्यूशन होगा, दिस लॉट ऑफ वेस्ट में ऑल्सो फ्लो because of wind and because of geography to water sources, marine litter हो बन जाएगा। emissions from production, use, open burning, littering, so अगर आपको ये वेस्ट पड़ा रहेगा तो कई बार नेचुरल फायर भी लग सकता है उसमें, बिकॉज उसमें कोई ऐसे कंपोनेंट होंगे जो आग पकड़ सकते हैं हवा से, कैसे भी। लिटरिंग से भी एमिशन, बड़े बड़े वेस्ट से भी एमिशन निकलती हैं, सो लैंडफिल से काफी एमिशन निकलती हैं, तो इसीलिए वो इशू हो जाएगा। थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी तो होगा ही। देन लैंड डिग्रेडेशन होगा, जहाँ पे पड़ा होगा वो लैंड में सीप इन करेगा, उसके हैजार्डस कंपोनेंट्स एक्सेट्रा, लीचिंग हो सकती है, जिससे इट कैन गो टू द एक्सटेंट ऑफ इम्पैक्टिंग अ फूड सिस्टम। अब जैसे आजकल एक बहुत इशू जो डिस्कशन में है कि प्लास्टिक वेस्ट जो वाटर रिसोर्सेज में जा रहा है या वैसे लिटर इधर हो रहा है, वो काफी हमारे फूड सिस्टम में भी शायद ट्रैवल कर चुका है थ्रू माइक्रो प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। एंड देन देयर कुड बी अदर नोन एंड अननोन इम्पैक्ट्स, साइंस रिसर्च होती रहती है जिससे नए नए इम्पैक्ट्स पता चल से सकते हैं। सो थ्रोइंग अवे वेस्ट और नॉट considering it to generate value, we should think that this should be a thinking of the past. What we need to do is that now we need to move एंड थिंक ओनली इन साइकिल्स, कि हमने कुछ इस्तेमाल, कुछ बना, मार्केट में एक प्रोड्यूसर ने बनाया, हम उसको भेजा, कंज्यूमर तक पहुंचा, कंज्यूमर एज इन यू, आई, आपके मम्मी पापा, मेरे बच्चे, हम लोगों ने कंज्यूम किया। उसके बाद हमारा जब कंजम्पशन हो गया या उसका हमारे लिए यूज नहीं है, वो सो कॉल्ड हमारे लिए वेस्ट बन गया, बट देयर इज वे टू जनरेट वैल्यू आउट ऑफ दैट, एंड उसको इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट गो गेट डम्प्ड और थ्रोन अवे, वी ब्रिंग इट बैक इनटू द सिस्टम। जब वो सिस्टम में वापस आएगा इन द फॉर्म ऑफ वेदर दैट प्रोडक्ट विच वी आर कॉलिंग एज वेस्ट गेटिंग रीयूज्ड, or that product which we are calling waste getting transformed into another product, or that product which we are calling waste getting recycled, and then it comes back to the system through as a raw material, उसके सारे अलग अलग होके आ जाते हैं या कैसे भी। तो ये जो थिंकिंग है ये कहते हैं सर्कुलर थिंकिंग। तभी आजकल आपने बहुत एक ये वर्ड, बज वर्ड सुना होगा, सर्कुलर इकोनॉमी। तो सर्कुलर इकोनॉमी आपको बहुत सिंपली कह रही है कि नथिंग कम्स आउट एज वेस्ट, कि जो भी वेस्ट जैसा लग भी रहा है वो सिस्टम में किसी वे में वापस आ जाता है, तो एक क्लोज लूप है, एक लूप बन जाता है। एंड ऑल्सो गिवन दैट हम लोग तो बहुत स्मार्ट है, आप बच्चों के पास तो इतने इनोवेटिव आइडियाज होते हैं कि दैट इट इज पॉसिबल टू जनरेट इंटेलिजेंट रीयूज ऑफ वेस्ट, बोथ एज अ रॉ मटेरियल और एज दैट वेस्ट एज अ प्रोडक्ट फॉर अनदर पर्पस। सो हमें बहुत जरूरी है कि हमें उसका इंटेलिजेंट रीयूज या उसका रिसाइकल करें, सो दैट देयर इज वैल्यू विच वी कैन जनरेट आउट ऑफ इट। एंड उसके लिए आप जैसे यंग बच्चों की थिंकिंग तो बहुत ही हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मैंने सोचा आपको इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि वेस्ट को कई बार आप सुनेंगे अप साइकिल होता है, कई बार कहते हैं डाउन साइकिल होता है, या जनरली आपने मोस्टली सुना होगा रिसाइकल। सो दीज आर जस्ट टर्म्स आई वुड से, बट आई थॉट मैं आपको एक अप साइक्लिंग ऑफ वेस्ट जो आजकल काफी एंटरप्राइजेस करना चाह रही हैं या कर रही हैं, उसके लिए मार्केट भी है, इज लेट मी एक्सप्लेन टू यू दैट अ बिट। सो अपसाइक्लिंग क्या है? दैट अपसाइक्लिंग होता है कि क्रिएटिव रीयूज। सो जैसे मैंने जब आपको पिक्चर्स दिखाई थी, वो पेट बॉटल का एक पॉट टाइप बना लिया, इज अ क्रिएटिव रीयूज ऑफ अ प्रोडक्ट और अ वेस्ट प्रोडक्ट। So basically upcycling is the process of transforming waste materials और बाई प्रोडक्ट्स होते हैं कि जैसे आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है कोई कंपनी, उसने एक प्रोडक्ट ए बनाया, बट उसके बनाने में एक प्रोडक्ट बी या एक मटेरियल बी या कोई एक चीज बी निकलती है जो उसके लिए शायद नहीं जरूरी, तो उसको कहते हैं बाई प्रोडक्ट है। सो उसको वो कंपनी वेस्ट कर सकती है, या वो बाई प्रोडक्ट एक्चुअली कैन बिकम एन इनपुट फॉर अनदर कंट्री, another company. So that's what is also somewhere where we need to, at least the companies need to think about कि मेरा अगर कोई by product निकल रहा है which is a product coming out as by the way because मेरा एक main product बन रहा है उसके साथ ये निकल रहा है, या it is more for me a waste that can be of use for somebody, it can generate value for another company. So by unwanted products, byproducts, waste material, when they get converted into new materials or products of better quality and environmental value,
retaining the characteristics of original material, इसको upcycling कहते हैं. So it helps promote a circular economy by giving that discarded material or waste a second life. And because हम उस material waste से कुछ और बना रहे हैं, तो वो जो और चीज हम बना रहे हैं, अगर हम उसको मार्केट से खरीदते या उसको बनाने के लिए हम न्यू रॉ मटेरियल लेते, वो बचत हो जाएगी, बिकॉज आप एक यूज्ड मटेरियल ले रहे हो, उससे कोई नई चीज बना रहे हो. So more often than not, it doesn't require major financial investments. तो ये आप कई अपसाइकलिंग के जो सॉल्यूशंस है वो तो घरों में बन रहे हैं. मतलब मदर्स ने, उन्होंने सोचा कि अच्छा हमारे घर में ये जनरेट होता है या हमारी सोसाइटी में ये जनरेट होता है, इसका हम क्या कर सकते हैं. तो इतना फाइनेंशियल आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए होता. It requires out of the box thinking, which again, as I mentioned, you as students have lot of ideas. So share it out with your parents, with your teachers, with your peers. Smart designing, and you need to reorganize production. So say company bana rahi hai product A, which can using a raw material which is new raw material, but I have a solution where I can help that company make that product with the used raw material. Then I can help the company reorganize its production in a way that you become more dependent, you use secondary or the used material and come make the same product. So this upcycling keeps refuse out of landfill. So lot of items which were waste, अगर वो landfill जा रहे होते हैं, उसको रोक लेता है, because उसको हम upcycle करके उसको transform कर रहे हैं. And as a result, it helps offset demand for virgin material. It reduces carbon emissions because waste ना में वो waste ही नहीं बनेगा, वो उसका कोई product बन जाएगा. So to give you some examples, I mentioned here that there are old clothes, plastic tires, tire tubes, broken glass, wood, etc., which have been used to make very stylish products. So जैसे मैंने आपको glass bottle का दिखाया था, जूट से wrap करके उसका सुंदर सा artifact बन रहा है. which एक मुंबई में कंपनी है जिनके से मैंने इंटरेक्ट भी किया है. छोटी सी कंपनी है, एक लड़की, यंग सी लड़की उसको रन करती है. वो क्या करती है, पोस्ट कंज्यूमर, एंड जैसे हमने अगर जीन्स पहनते हैं, डेनिम सब पहनते हैं, जो हमारे लिए पुरानी जीन्स होगी वो लेके, या इंडस्ट्री जहाँ पे डेनिम जीन्स वगैरह बनती है, उनमें जो वेस्ट पीसेस होते हैं या डिस्कार्डेड जीन्स होती हैं, वो लेके वो उससे बैग्स एंड ज्वेलरी बनाती है. So she has already upcycled lot of this denim waste into of jeans into form of bags, jewelry, artifacts, etc. There is a Bangalore में कंपनी है जो ज्वेलरी बनाती है डिस्कार्डेड पेट बॉटल से. तो जो डिस्कार्डेड पेट बॉटल से प्लास्टिक निकलता है, उसको कट करके, उसको यूज करके ज्वेलरी बनाती है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. देन मैंने आपका पीछे एक जो लास्ट वाला टॉक था डॉक्टर सुनील पांडे का, वो मैंने ब्रीफली सुना था, एंड आई रियलाइज उसमें और उससे पहले वाले में आप लोगों ने 3 आवर्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट पे या हायरार्की जो होती है डिस्कस किया था. तो मैं उसमें सिर्फ एक ऐड करना चाहूंगी. आजकल तो कई बार कहते हैं 6 आवर्स, 5 आवर्स, आई मीन आप उसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, बट गिवन दैट आपको ये 3 आवर्स बहुत अच्छे से पता है कि रिड्यूस, विच से गिव अवे थिंग्स दैट यू नो लॉन्गर नीड टू अ सेकंड हैंड मार्केट और टू समबडी हु कैन यूज इट. Then you can also reduce waste by buying products that use less packaging, because packaging waste एक major component है of waste. We can also make use of reusable rather than disposable items. तो अगर हम मार्केट जा रहे हैं, बार बार प्लास्टिक बैग की जगह या पेपर बैग की जगह हम अपना क्लॉथ बैग लेके जाएं, जिसमें हम चीजें खरीद के लाएं. क्लॉथ बैग जब गंदा हो गया उसको धो लिया, रीयूज कर लिया. Repair and maintain items such as clothing so that they last longer. So this all will lead to reduction in consumption, reduction in use of raw material, virgin raw material, and it will help save resources for us. Reuse, आपको वो भी पता है कि repair things that are broken, bottles can be refilled, old clothes can be passed on to neighbors, our helpers at home. Recycle, put things into the recycling system. जहां आपको किसी चीज का कोई भी यूज नहीं दिख रहा, जैसे आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या अब उसका बिल्कुल ही यूज नहीं है, वो कोई और भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, तो उसको रिसाइकल चैनल में भेजो. So that then there are methods, techniques, and people involved who would recycle it, recover the material out of it in a fair manner and in an environmentally safe manner. So मैं इसमें सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज एडिशनल बताना चाह रही थी, that there is another R which actually comes on top of all this, that we can also at times refuse certain things. So say no to consumption.
कई बार आपको जैसे आता है पैक, आप अमेजोन से आप कुछ ऑर्डर करते हैं, मम्मी कुछ ऑर्डर करती है, अगर आपको लगता है कि वो बहुत सारी पैकेजिंग के साथ आ रहा है, स्पेशली समथिंग विच इज नॉन फ्रेजाइल, अगर उसको भी उन्होंने बार बार लेयर्स और पैकेजिंग के कर सकते हैं, आप वो पैकेजिंग रिफ्यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास, आप मार्केट में जा रहे हैं, अगर आपको वो एक आदमी किसी केमिस्ट की शॉप पे गए, आपने मेडिसिन ली, स्ट्रिप्स ली, वो आपको एक प्लास्टिक के बैग में दे रहा है या पेपर बैग में दे रहा है, आप कहो मुझे नहीं चाहिए वो बैग, मैं अपने पर्स में डाल के ले जाऊंगी, वो कोई लीक नहीं होगा, कुछ टूटेगा नहीं। So it's important that we also start when we are looking at our consumption, or thinking about what we are consuming, how we can contribute, that we need to at some places also refuse certain consumption. Next slide please. फिर मैं आपको एक चीज बताना चाह रही थी इसी कॉन्टेक्स्ट में, वेस्ट और वेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में, वाज लाइफ साइकिल थिंकिंग। सो वेस्ट हायरार्की आपको क्या बोलती है कि सबसे इंपॉर्टेंट, और आज बेसिस ऑन व्हाट आई हैव टोल्ड यू एन एडिशनल आर, दैट रिफ्यूज is what we refuse is like at the top, then we reduce, then we reuse, or then if nothing then we recycle. So waste hierarchy आपको बताती है कि most resource efficient and environmentally friendly way of waste को कैसे डील किया जा सकता है, but we have to understand that the best choice depends upon what the situation is and what the conditions are, and it would also be specific to a waste stream. So say आपके पास कोई जैसे अगर आपके पास आई मीन मेरे को अभी एकदम से आउट ऑफ द ब्लू नहीं आ रहा एग्जांपल, बट इट कुड बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक आपको कोई चीज है जो आपके लिए वेस्ट है, अब वेदर आप उसको रीयूज करोगे या उसको रिसाइकल करोगे या अपसाइकल करोगे, वो डिपेंड करेगा कि वो वेस्ट किस फॉर्म में है। वो रीयूज हो सकता है, क्या वो रिसाइकल हो सकता है, या एट द फर्स्ट पॉइंट क्या वो हमारे पास वो हमारे पास बना कैसे वेस्ट, was there a way to not make it a waste so that way you could reduce the waste. So life cycle thinking बहुत हेल्प करती है इन चीजों में, बिकॉज लाइफ साइकिल थिंकिंग बताती है कि ठीक है ये प्रोडक्ट ए है जो वेस्ट है, अब उसको मैं क्या करूं, उस प्रोडक्ट को उस स्टेज तक लाने में, वो प्रोडक्ट पहले बना, वो ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर वो कंज्यूम हुआ, उस सब से रिलेटेड देवर एमिशंस। अब इस प्रोडक्ट को अगर मैं रीयूज करूंगी या रिसाइकल करूंगी या कुछ कोई और एंड स्टेट में ले जाऊंगी, थ्रो अवे कर दूंगी, डंप कर दूंगी, तो उससे भी रिलेटेड एमिशंस निकलते हैं। सो बेसिकली लाइफ साइकिल थिंकिंग और लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव विल हेल्प टेल अस कि इवन जो एंड स्टेट है वेस्ट प्रोडक्ट का, उसको उससे रिलेटेड क्या एनवायरमेंटल डैमेजेस या एमिशन वगैरह हो सकते हैं, देन इट कैन हेल्प अस कंपेयर दैट फॉर अ पर्टिकुलर वेस्ट विच मे बी अ बेटर मेथड। हम शायद इंडिविजुअल लेवल पे घर पे आप, मैं, आपके पेरेंट्स, हम लोग नहीं कर सकेंगे आइडेंटिफिकेशन, but for us it's more important that we segregate and channel it to through the right source for an end state management. अब एक एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर कई बार ये हो सकता है कि आपके पास एक अप्लायंस है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, मिक्सी है, प्रेस है, वो इस हालत में है कि अगर आप उसको रिपेयर कराओगे, बिकॉज रिपेयर में भी हो सकता है एमिशन जनरेट हो, उसको कोई वेल्डिंग करनी हो, कोई कुछ करना हो, मतलब वो भी एक प्रोसेस होता है, आपको उसको लेके जाना पड़ेगा कहीं पे एक्सेट्रा, और कि मैं नया अप्लायंस खरीद लूं। सो कई बार ये चीजों में भी समझना पड़ता है कि व्हाट मे बी बेटर फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव और फ्रॉम द एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव। सो जैसे एक स्टडी है उसने दिखाया है कि समटाइम्स इट इज बेटर फॉर द एनवायरनमेंट टू रिप्लेस एन ओल्ड वॉशिंग मशीन डिस्पाइट द वेस्ट जनरेटेड दैन टू कंटिन्यू यूजिंग दैट ओल्डर मशीन, जिसकी एनर्जी एफिशिएंसी कम है, वो पानी भी ज्यादा यूज कर रही है, शायद साबुन भी वेस्ट कर रही है, बिकॉज वॉशिंग मशीन के केस में और स्टडीज ने भी दिखाया कि उसका ग्रेटेस्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है ड्यूरिंग द यूज फेज। सो अगर वो इतनी पुरानी हो चुकी है या उसकी एफिशिएंसी इतनी कम हो चुकी है, देन वो जो एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट दिखा रही है मे बी अ लॉट मोर देन व्हाट it would be if you substitute that with a new machine. Next slide please. So waste to value and impact on climate change, which is like one of the key issues which Neha had also suggested to me that मैं आप लोगों को थोड़ा उसके बारे में बताऊं. So जब products कुछ भी बनते हैं, energy लगती है, effort, मतलब उसका process होता है, gases, greenhouse gases emit होती हैं. But in context of waste, जब वो product waste बन जाता है, the largest contributors to emission occur when that from the waste sector is when waste is lying at the landfills.
Though some of the GHG emissions are also happen जब हम waste को convert करते हैं, recycle करते हैं, transport करते हैं for recycling or reuse. But generally, most of the major part of the emissions linked to waste products or the waste sector is when the waste is in the landfills. So when we generate value or wealth from waste, it can lead to GHG emission reduction through various channels. There are indirect and direct. For example, indirect GHG emissions through decreased waste production, क्योंकि अगर वो waste ही नहीं बना, जो प्रोडक्ट शायद हमारे लिए वेस्ट था, अगर हम उसको वेस्ट बनने ही ना दे, उसको रीयूज कर लें, कुछ कर ले, तो आपका वो कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, वो ट्रांसपोर्ट नहीं होना पड़ेगा, वो ट्रीट नहीं होना पड़ेगा, बिकॉज वो वेस्ट बना ही नहीं. सो देयर वुड बी इनडायरेक्ट जीएचजी एमिशन रिडक्शन. देयर वुड आल्सो बी जीएचजी रिडक्शंस थ्रू इंक्रीज रिसाइकलिंग, बिकॉज अगर रिसाइकल होगा तो रिसाइकल होके एक न्यू मटेरियल, सेकेंडरी रॉ मटेरियल बन जाएगा, and that can be used to substitute virgin material. So virgin material आपको शायद माइन नहीं करना पड़ेगा उतना अमाउंट. There would also be direct GHG emission reduction from increased composting होता है, जैसे anaerobic digestion, which will reduce the methane emissions from landfills. Direct decreases in GHG emissions through increased landfill gas collection. So अगर landfill में आप अच्छे से उसको manage कर रहे हो, अगर you are able to collect the gas which is generated, then it can be reused. And you also avoid GHG emissions through displacement of fossil-based electricity. So, आपका lot of this material which is coming, I mean, many times also it requires energy, because किसी भी production process में energy require होता है. तो अगर वो एनर्जी सेव होगा तो आपका फॉसिल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज विच आर मेजर एनर्जी सोर्सेज वो भी बचेंगे. सो अगर एक वेल ऑपरेटिंग रिसाइकलिंग सिस्टम है जो कलेक्ट करता है हमसे, से पेपर अगर हम एग्जांपल लें, collects the paper and produces new paper, then it displaces the use of virgin paper. So new trees हमें नहीं काटने पड़ेंगे, trees continue to exist and then they become a GHG sink, कि वो emissions को absorb कर लेते हैं. Less energy is required in the production of paper from old paper than would be in making new paper. ये कई स्टडीज ने दिखाया है कि आप पहले ट्रीज कट करके नया पेपर बना के चीजें पेपर प्रोडक्ट बनाओगे कंपेयर टू मेकिंग पेपर आउट ऑफ ओल्ड पेपर. सो लैटर में कम एनर्जी लगता है. And this paper, which no longer has to be managed as waste, and the emissions resulting from its transport and disposal are saved, because आपने उस पेपर को वेस्ट बनने नहीं दिया, वो आपके लिए शायद वेस्ट था, but now it gets recycled and gets converted into new paper. So again we have to keep in mind that अगर ये पेपर हमने बहुत co-mingled with other wet waste etc दिया होता तो lot of energy would have to be spent to clean it, to remove it. And recycle, अगर recycle करना है soil paper, wet paper recycle करना भी बहुत मुश्किल है. So again segregation becomes a key. Next slide please. So ये मैंने ऐसे ही एक स्लाइड लास्ट किया, अभी एक या दो स्लाइड ही बची है. सो वन इज कि हम एज एन सिटीजन क्या चीजें कर सकते हैं. छोटी छोटी चीजें बहुत वैल्यू देती हैं. तो जैसे अगर हम एक सोसाइटी में रहते हैं, अगर वो सोसाइटी लेवल पे हम गार्बेज को काफी रिड्यूस कर सकते हैं. इनफैक्ट जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, अगर हम लाइक किचन वेस्ट, हॉर्टिकल्चर वेस्ट, अगर हम उसको compost बनाए society level में, that compost can be used in the premises, so there's value generated out of that waste for use. वो gardening के लिए use हो सकता है, whether community gardening या लोगों के घरों में जो पौधे होते हैं, or you can sell it in the market, so there's value in that waste. अगर आप ये मिल्क आइटम, जैसे मिल्क पैकेट्स हम सब लेते हैं, आपने नोट किया होगा जब हम उसको कट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कट आउट जो होता है हम फेंक देते हैं, अलग कर देते हैं. अब वो छोटे से कटआउट को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है. जो भी कलेक्ट करता है, पैकेट्स कलेक्ट हो जाते हैं, पर अगर हम एक थोड़ा सा एफर्ट डालें कि उस प्लास्टिक बैग को हम ऐसे कट करें कि वो छोटा सा कटआउट पार्ट अलग ना हो, तो वो लिटर ही नहीं होगा, वो मिसमैनेज ही नहीं होगा. फिर ये जो प्लास्टिक दूध का पैकेट होता है, ये बहुत अच्छे से रिसाइकल होके इसकी बहुत चीजें बन जाती हैं. तो पैकेट की अभी भी बन रही है, बट वो कट आउट वेस्ट हो रहा है. वो कट आउट छोटा छोटा टुकड़ा ही लिटर होके कई बार इवन मेरीन रिसोर्स वाटर तक पहुंच जाता है. एक जैसे एनुअल बीच क्लीन अप एक्टिविटी हुई थी, उन्होंने दिखाया था दैट जब वो बीच क्लीनिंग करते हैं तो ये जो हमारी बॉटल्स के ढक्कन होते हैं, दे आर द थर्ड मोस्ट कलेक्टेड आइटम वर्ल्ड वाइड. व्हाई आर दे लिटर्ड? आई मीन जब हम बॉटल थ्रो करते हैं, हम बॉटल पे कैप लगा के क्यों नहीं थ्रो कर सकते? अगर हम वो करेंगे तो वो बॉटल कैप के साथ कलेक्ट होएगी. फिर जब वो बॉटल्स इकट्ठी होकर रिसाइकलिंग के लिए जाती है तो अपने आप उनके मेथड्स होते हैं, वो ढक्कन को इकट्ठे करके दे रिसाइकल इट इन अ पर्टिकुलर मैनर, बॉटल को अलग.
बट ये सिंगल ढक्कन जो थ्रो हम करते जाते हैं वो कई बार बहुत लिटर हो जाता है, उससे फिर टू collect that there is a cost involved both in terms of time, in terms of effort, in terms of money. So we can do these small things to ensure that we are able to generate reduce waste or generate value out of waste. So basically, again, kind to some of the things which I have said earlier, we can reduce our consumption of products and material where possible, which you and I both can do. We can demand in the market, we can create a demand for products made using secondary raw material. Secondary raw material होता है basically जो raw material जो पुरानी चीजों को से निकाला जाता है. We can reuse products until you can no longer use. So जैसे phones है, why do you want to throw them because एक नया model आ गया? As long as it is serving, giving us good service, why we can continue to reuse it. Similarly for clothes, etc. If we are disposing certain products which are waste for us, we should be a responsible consumer and dispose it in a responsible manner. We should segregate waste. We should return responsibly when buyback exists. So टेक बैक एग्जिस्ट. तो अगर कोई प्रोडक्ट है उससे लिंक्ड एक बायबैक है कि वो जो प्रोडक्ट की कंपनी है या जहां से आपने प्रोडक्ट खरीदा है वो आपको बोलता है वेदर इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और सम अदर प्रोडक्ट कि आपका जब ये यूज खत्म हो जाए आप हमारे पास वापस लाइए. So avail of that opportunity, making that effort to go return the used product or the waste, so-called waste for you, because then it will get channeled to the right source for better improved recycling. रिपेयर इंस्टेड ऑफ थ्रो. आजकल आई डोंट नो अगर आप लोगों ने सुना है, बट इंडिया में तो पहले बहुत ही रिपेयर वर्कशॉप्स होती थी. आई मीन छोटे छोटे कॉर्नर्स में आपको कोई भी चीज खराब हो, वेदर आपका इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, आपका जूता है, कुछ है, वो रिपेयर हो जाता था. आजकल हम थोड़ा थ्रो अवे हो गए हैं बिकॉज हमें बोर हो जाते हैं चीजों से. नई चीजें मार्केट में आती है, फिर हम एफर्ट नहीं डालना चाहते. कौन लेके जाएगा उसको? पहले मिक्सी को ठीक करने देगा, फिर पिकअप करने जाएगा, फिर पता नहीं वो चलेगी नहीं चलेगी. So it's important that we go back to our older system of focusing on repair. So आजकल बैंगलोर में जैसे एक रिपेयर कैफे का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है. So there are other repair cafes also coming up elsewhere and in developed countries also, जहाँ पे also they have realized that there is value which can be generated out of so-called waste once you repair those products which were so-called waste. Build awareness amongst our friends and family, and that's what I think one of the key objectives of this entire program is कि आप aware हो और अपने friends और family को भी बताओ. Then acceptance of product as a service, वो भी उससे भी waste काफी reduce होगा. For example कि आपको कोई जरूरी नहीं है आपको हर चीज ओन करनी है. So जैसे अगर आप से किसी सिटी में जा रहे हो 3 महीने रहने के लिए, why to buy everything new? There are ways in which you can rent out things and also you can you take a product for somebody. आपको वो प्रोडक्ट एज अ सर्विस मॉडल मिलता है कि वो आपको जो भी उसको ओन करता है वो आपको देगा, उसको कंपनी उसकी सर्विस देगी एंड देन यू कैन रिटर्न इट. हैंड ओवर वेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवॉइड लिटरिंग, ये मैंने आपको पहले भी एम्फसाइज कर दिया. नेक्स्ट स्लाइड. एक ये केस स्टडी है, ये मैं जब प्रिपेयर कर रही थी इस टॉक के लिए तो मैंने आई केम अक्रॉस दैट. सो युगांडा में एक स्कूल है सेंट किजिटो हाई स्कूल who have come up with ways to collect the waste and transform it into wealth. So वो क्या करते हैं, वो जैसे सिल्ट वगैरह इकट्ठा होता है वो उससे स्कूल के पेवर्स बनाते हैं. वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं फ्रॉम प्लास्टिक स्ट्रॉज एंड बॉटल्स विच दे देन सेल बिकॉज बहुत सुंदर सुंदर आर्ट प्रोडक्ट्स क्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं. दे ऑल्सो टर्न बायो वेस्ट जैसे जो किचन या हॉर्टिकल्चर वेस्ट होता है इनटू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फॉर स्कूल गार्डन्स, where they also learn to grow vegetables like mushroom, onions, cabbage, and they use dried briquettes made from bio waste as a fuel to cook school meals. They have also set up a small recycling facility in the school. What they do is उन्होंने उसमें 3 large metal bed frames लिए, उसको refashion किया into a simple recycling facility, and उसमें they separate waste into paper, plastic, biodegradable. They use the dirty straw and other waste items. They wash them, weave them into basket, handbags, etc. And then they sell those to parents and visitors, and then they earn money. Schools also uses this waste से बनी जो briquettes होती हैं, pieces होते हैं ऐसे fuel pieces होते हैं. They to contribute to recycling and reducing deforestation. So instead of getting wood, cutting wood, getting that, using that as a fuel, ये bio waste से जो briquettes बनाते हैं उसको use करते हैं. So the school does not need firewood and therefore does not have to cut trees. So वो एक school level पे इतना कुछ कर रहे हैं. There's lot of learnings for us
as school children to draw. Next slide. So this is my last slide. So why I just, I mean, I also did this slide was that I didn't want to leave you suddenly with, मैंने आपको knowledge दे दी, खत्म हो गया. I would suggest that think of at your own level. अभी तो आप लोग virtually attend कर रहे हो, शायद school नहीं जा रहे. अगर जा भी रहे हो तब भी आप ये कर सकते हो कि आप हर अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपनी फैमिली के साथ या खुद सोचो कि आप क्या 5 वेस्ट आइटम्स जनरेट करते हो एक हफ्ते में, एक वीक में. And then identify that what is the type of waste, plastic hai, paper hai, kya hai, wet waste hai, kya hai. Then think of innovative ways in which those waste items can be converted into value. It doesn't have to be a value certainly कि आप कोई item बनाओ या उसको कोई way में reuse करो कि आप market में जाके उसको बेचो. आपके लिए क्या वो value generate कर सकता है? How can that item be reused? Or you can transform it into something which can be of value to you. Or of course, जैसे स्कूल में बच्चे कर रहे हैं, you can sell it. Discuss with your friends what they have identified. Then prepare a list of these common suggestions for all those key types of waste and discuss with your teachers and prepare a short note जो आप school की principal को submit करो, and then that note can be shared with other students because I'm sure अभी आज आपके साथ इस webinar में not all students are not there, but आपने जो knowledge gain की उसके basis पे जो आपने सोचा आप वो बाकियों के साथ भी share करो. So this is it from my side. I think on me, this is the last slide. Yes, this is the last. Okay, thank you. And I'm here now open to questions. आप लोग ये एक्टिविटी जो मैम ने दिया है, आई होप आप लोग ने ये कॉपी किया है एंड प्लीज आप ये जरूर थिंक अबाउट इट एंड प्लीज डू इट एट योर होम. And Dr. Shilpi, we have one questions. I mean, we have 2-3 questions, not much. And one of them are, how can we conserve resources by reusing it rather than throwing it? One of the question was that, and how to use clear wrappers. What wrappers? Clear wrappers. Subhashmita Dio has mentioned. If she can tell me a bit. पहला question पहले ले लेते हैं. So हम resources को कैसे save करेंगे? Can you read it again? How do we? Just a second. Yeah. How can we conserve resources by reusing it rather than throwing it? करेक्ट. सो आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, सो जैसे अगर आप मार्केट में आज में आप मम्मी को बोलते हो कि मुझे जाना है एक नई नोट, जैसे नेहा ने एग्जांपल दिया था कि आप अगर पुरानी नोटबुक, जैसे आपका जब ईयर एंड होता है उसमें एम्प्टी पेजेस होते हैं, उसको आप थ्रो करोगे, उससे बेटर अगर आप उसमें जो एम्प्टी पेजेस है उन सबको इकट्ठा करके एक रफ नोटबुक बना लो. सो आपसे ग्रेड 3 से ग्रेड 6 से ग्रेड 7 में गए, आपको रफ नोटबुक लगेगी. सो जब आप अपनी बुक्स लेने जाओगे, यू कैन ऑलवेज डिसाइड कि मैं एक नई रफ नोटबुक नहीं लूंगा, मेरे पास ऑलरेडी पिछले साल के रफ पेज जो एम्प्टी पेजेस थे उससे एक रफ नोटबुक बनाई है. सो यू आर बेसिकली रीयूजिंग योर पेपर which was ideally a waste for you, but somebody gave you an idea that why to let it go waste. तो आप उससे एक बुक बना ली. सो अगर आप नई बुक नहीं खरीदोगे, उसकी डिमांड नहीं होगी, उसको बनाने में रिसोर्सेज नहीं यूज होंगे, तो वो कंजर्व हो रहे. So basically, anything you reuse or recycle will lead in to resource consumption, resource saving. Yeah. Yes, ma'am. I think we have just one question. Otherwise, Subhashmita, आपने जो लिखा है, you can please clarify it again. If there is any question, and बच्चे आप लोग के पास कुछ questions है तो please please feel free to use the chat box. Ma'am is here only for some time, and we are anyways about to come to an end of the session. So if there is anything, please feel free to use the chat box. And meanwhile, I would, thank you, Dr. Kapoor, for taking this session, and it was very informative and very knowledge enrichment session. So thank you so much for that, and thank you for taking out time and from your busy schedule and being a part of this workshop. And like you mentioned, segregation is the key.
And with this message, I think, every students and teachers, I think we all should take this message forward and, generate reduce waste or value out of waste. So thank you so much, ma'am. Thank you. My pleasure. Thank you. And so... Manvi, the girl wanted to know about chocolate wrapper. Chocolate wrapper? Yeah. Okay. सो चॉकलेट रैपर का मे बी आपके पास बेटर होगा, पर हम जैसे बचपन में क्या करते थे, अगर क्लीन जैसे हमने चॉकलेट विदाउट मेल्ट हुई खोली रैपर को, तो वो रैपर को हम बुक्स में अंदर दबा देते थे, वो फ्लैटन अप हो जाते थे। एंड कई बार जैसे हम ओपन स्वीट्स लेके आए, उसको हम उसी रैपर में रैप करके जैसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स को हम दे सकते हैं। बाकी रैपर भी इट्स अ पेपर, अगर आप इकट्ठा करके चॉकलेट रैपर्स को, प्लास्टिक वाला है या पेपर वाला है, उसको थ्रो ना करो, इकट्ठा करके किसी भी रिसाइकलर के पास ले जाओ, जो आपका कबाड़ी वाला होता है। सी कबाड़ी वाला सड़क से जाके वो रैपर एक एक नहीं उठाएगा, पर आपने से 10, 20, 50 रैपर इकट्ठे करके उसको दोगे, वो लेके जाएगा, क्योंकि क्लीन होता है वो। उसको जाके वो जहां आगे बात दूसरा टाइप्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जहां बेच रहा है एग्रीगेटर को, वो भी बेच देगा। तो वो इंस्टेड ऑफ गेटिंग लिटर डंप, वो चला जाएगा राइट चैनल में। सो इट इज इम्पोर्टेंट। कई बार होता है हमारे पास स्टोरेज इश्यूज होते हैं, जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ, मुंबई में घर बहुत छोटे छोटे होते हैं, सो स्टोरेज कैन बी एन इशू। पर जैसे आप ये रैपर जैसी छोटी चीज है, चिप्स का पैकेट है, आप उसको स्टोर करो, आप नीचे वॉक पे जाते हो, आजकल रद्दी वाला कबाड़ी वाला हर एरिया में होता है, आप उसको हैंड ओवर करते जाओ। तो देखो थोड़ा एफर्ट हमें खुद डालना पड़ेगा, स्टोर करने के भी हमें इनोवेटिव प्लेसेस ढूंढने पड़ेंगे घर में। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत दिन स्टोर करो कि चूहे पैदा हुए, बट आप एक हफ्ता स्टोर कर लो, एक हफ्ते के बाद जाके कबाड़ी वाले को दे आओ, या अपनी सोसाइटी लेवल पे इकट्ठे करके उसको कबाड़ी वाले को बुला लो, वो ले जाएगा। बट पहले उसको सेग्रीगेट करो। चॉकलेट खाइए, वो रैपर को इधर उधर ना फेंको, उसको वेट कचरे में ना डालो, अपने पास एक और बैग ले लो, उसमें इकट्ठे करते जाओ, और हफ्ते 10 दिन के बाद उसको हैंड ओवर कर दो। Okay, I think we do not have any questions. Thank you so much, ma'am. Thank you my again. Pleasure. Thank you. Bye. Thank you. All right, moving on to the next session, that is an opinion poll. Meanwhile, I would request everyone to kindly switch on your video, and for which we would be taking a group picture. Before that, we have an opinion poll, जिसको मैं यहाँ पर आपके स्क्रीन में दिखेगा, आपको बस आंसर करना है। आपको 3-4 ऑप्शंस होंगे एक क्वेश्चन का, जो कि आपको तुरंत ही उसमें आंसर करना पड़ेगा। ओके, सो काइंडली दिस इज वेरी एनोनिमस, वो आपका गलत हो सही हो, इट डजंट मैटर, एंड इट्स अ वेरी जनरल बिहेवियरल चेंज टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो आप लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट कीजिए उसमें। एंड लेट मी पुट द फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, so can you see the question, everyone? So what is waste? What is waste? आप लोग quickly अपना आंसर कीजिए उसमें, and I will see the results. Okay, so nobody have responded yet. आपका 0 response है, तो मुझे please आप लोग आंसर कीजिए। इसमें options होगा 1, 2, 3 options है। मुझे अब तक 50 बच्चों में से मुझे सिर्फ 2 responses मिले हैं। Sentence is visible for everyone. अभी मुझे सिर्फ 5 responses समाज में आती है आपका ऑप्शन 2 है, और ऑप्शन 3 है ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर के दोनों चीजें ही अपशिष्ट यानी वेस्ट है। अपना एंटर आंसर जल्दी करें, क्योंकि उनको पता चल जाता है कितने बच्चों ने आंसर किया है और कितनों ने नहीं किया है। ओके। All right, moving on to the next question. आपका next question है, what are the different types of waste? ओके मम्मी, आपके वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट या गैसियस। ओके। दूसरा ऑप्शन है ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, ई वेस्ट यानी गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा। तीसरा ऑप्शन है सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है। चौथा ऑप्शन है सीवेज,
वेस्ट वाटर और इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इनमें से सबसे सही और या सही आंसर क्या है? बेटा आपको आंसर चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, आपको आंसर यहाँ पर जो आपके विंडो में ऑप्शन दिख रहा है उसके अंदर उसके सही ऑप्शन को क्लिक करना है और सबमिट करना है। ओके, आई थिंक ओपिनियन पोल हम लोग इतना ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते हैं, सो या ओनली 8 हैव रिस्पॉन्डेड एंड उसमें से 38% ने बोला है सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट एंड गैसियस एफ्लुएंट। सो एक्चुअली क्लोजेस्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट इज ये आपका यू नो द फर्स्ट ऑप्शन दैट यू हैव। ओके, सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी मैनेज वेस्ट? हम लोग वेस्ट को क्यों मैनेज करना चाहेंगे एंड व्हाई शुड वी डू इट? आपके ऑप्शंस है एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए, या उसमें से तीनों ही, ऑल ऑफ द अबव, मतलब जो आपके 3 आंसर्स है ऑलरेडी वो। क्विकली आप लोग आंसर कीजिए। Okay, 100% have replied, have got the right answer actually, which is all of the above. तो हम लोग को environment, healthy रहना and you know other आपका recycle भी करना है, उसके लिए हम लोग को manage करना चाहिए. Very good. Now you're getting the poll actually. But इसमें से भी सिर्फ 6 only responded. So please आपको मैं request करती हूँ, आप लोग को बस answer करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. Okay? ऑलराइट, मूविंग ऑन। ठीक है, जिसको सबमिट नहीं कर पा रहे हो वो लोग चैट बॉक्स में अपना आंसर्स लिख सकते हैं। ओके, कभी कभी ऐसा होता है बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूज आप लोग के ओपिनियन पोल नहीं आते हैं। ओके, सो प्लीज यूज योर चैट बॉक्स। Okay, question number 4. Organic, toxic, soiled and recyclable helps in categorizing garbage waste out of the following, which forms an important part of organic waste? आपका इसमें से ये ऑर्गेनिक, टॉक्सिक या रिसाइक्लेबल ये क्या करता है? ये आपको गार्बेज वेस्ट को सेग्रीगेट करता है। ओके, कैटेगराइज करता है कि ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये रिसाइक्लेबल वेस्ट है। तो इसमें से प्लास्टिक बैग, वेजिटेबल पील, ग्लास, मेटल, उसमें से आपका कौन सा वाला वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं? ओके, यस, द राइट आंसर इज वेजिटेबल पील्स, जो कि मुझे 100% ने बोला है। ओ वेरी गुड। ओके, लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस आर वेरी इजी, सो आप लोग को इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्लीज यूज योर चैट बॉक्स एज वेल। ओके, व्हाट इज वेट वेस्ट? ऑर्गेनिक, आंसर्स आर ऑर्गेनिक, लिक्विड, बायोडिग्रेडेबल या ऑल ऑफ द अबव? Okay, let me see the results. ओके, ऑर्गेनिक वेट वेस्ट सिर्फ लिक्विड वेस्ट नहीं होता है, किसी ने लिक्विड वेस्ट ही लिखा है, बट ये बायोडिग्रेडेबल भी होता है और ऑर्गेनिक भी आता है। सो तीनों मिला के होता है आपका वेट वेस्ट। ओके, सिर्फ 3 लोगों ने वैसे आंसर किया है। आई नीड 50 रिस्पॉन्सेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6. In terms of the hierarchy, which is what is the order of the 3 R's? Okay, आप लोग को आज ही मैम ने बोला है आप 3 R's of waste management. So आप उस हिसाब से आप बताइए इसमें से हायरार्की मतलब पहले कौन सा आना चाहिए, उसके बाद कौन सा आना चाहिए एंड तीसरा में कौन सा आना चाहिए? Yes, option C is the right answer. Very good. 67% have mentioned as option C. बहुत अच्छा है, आप लोग मतलब इसका मतलब ये है कि आप लोग ध्यान दे रहे थे सेशन में, which is very good. Okay, question number 7. Which rule govern the solid waste management in India? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग का रूल्स है, ठीक है, वो बहुत सारे ईयर में चेंज होता है, बट इंडिया में कौन सा पर्टिकुलर रूल हम लोग कौन सा मैनेजमेंट रूल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल हम लोग यूज करते हैं? ओके, आपके ऑप्शंस 4 ऑप्शंस है, उसमें से आप बताना कौन सा सही है।
Anyone? आप लोग ये अगर आंसर नहीं दे पा रहे हैं सो आप लोग गूगल भी कर सकते हैं एंड इस ये आपका होमवर्क भी है. एक्चुअली द आंसर इज 2016. And solid waste 2016 is the one that we use, okay, that we follow in India. Okay, second last question, actually question number 8 है. The question is आपका बेस्ट शॉपिंग बैग क्या होता है जब आप सुपरमार्केट जाते हैं? ओके, आप लोग कौन सा वाला यूजुअली आप लोग यूज करते हैं? प्लास्टिक बैग, पेपर बैग या ओन रीयूजेबल बैग फ्रॉम होम या ब्रांडेड बैग्स? कौन सा आप लोग के लिए यूज कौन सा वाला होना चाहिए? ऑप्शन 3, ऑप्शन ए. ओके, वेरी गुड. या एक्चुअली यू नो इट्स एक्चुअली ऑप्शन 3. अगर हम लोग अपना खुद का बैग यूज करेंगे, रीयूज जो हम लोग खुद से बना के हम लोग रीयूज बार बार करें, तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन वी शुड डू इट. ठीक है. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. How much solid waste does the world generate every year around? Okay, आपका सॉलिड वेस्ट ग्लोबली कितना होता है? एवरी ईयर में कितना होता है यूजुअली? आई एम श्योर ये सब लोग गूगल करेंगे. एक्चुअली रफली इट्स 2.1 बिलियन टन्स. ओके, एंड सिर्फ एक ने ही आंसर किया है, सो यस 2.1 बिलियन. Okay, last question, that is when organic waste decomposes, carbon dioxide and methane gas is created. ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट जब डिकम्पोज होता है तो क्या होता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस क्रिएट होता है. ओके, ये आज मैम ने भी बोल रहे थे. सो व्हाट आर these type of gases which contribute to global warming and climate change? Yes, very good. I think किसी ने आंसर भी किया था कि GHG क्या होता है. So yes, that is greenhouse gases. Okay, very good. 67% have answered as greenhouse gases. Okay, so with this we come to an end of the session as well. And meanwhile, please everyone switch on your video, and I would request Miss since we have come to the end of our session, we have some announcements to make. We have some important activities to tell you. So for this, I would like to invite Ms. Tanvi Sharma, Associate Fellow at Environment Education Awareness Area at TERI, to give the way forward. Over to you, Tanvi. Yeah, thank you, Monmi. I hope I'm audible. Yeah. Yes. Okay. So, hello, बच्चों, आप लोग कैसे हो? I hope everyone is fine. फोटो में तो सब सही लग रहे हैं. Good. सो मेजरली जो वे फॉरवर्ड है, आप लोगों को पता ही है, ग्रीन स्कूल में आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो. अभी भी करते आए हो, पहले भी करते थे. तो अभी इमीडिएटली कुछ 3-4 एक्टिविटीज़ हैं जिसके बारे में मैं आपको बस बताना चाहती हूँ. पहली एक्टिविटी है विंटर स्कूल चैलेंज. इसमें कुछ बहुत ज़्यादा काम आपको नहीं करना है. एक फॉर्म हम लोग आपको सर्कुलेट करेंगे. सपोजिटली आपने 2021 मतलब इस वाले साल में कोई भी ऐसी एक्टिविटी की है जो इन्वायरमेंट बेटरमेंट के लिए है, या आपने सैपलिंग लगाया है, या कुछ वेस्ट को रीयूज़ करा है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो आपने की है, उसका आपने हमें सिर्फ डिटेल देना है विथ 2 पिक्चर्स. जैसे ग्रीन बडी प्रोग्राम में काफ़ी स्कूल के बच्चे ऑलरेडी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करते आए हैं ग्रीन बडी प्रोग्राम में. जैसे कुछ बच्चों ने प्रीवियसली पेपर बैग्स बनाए थे, या कुछ बच्चों ने प्लांटेशन किया था. तो ऐसे ही जो भी एक्टिविटी आपने की है, आपको वो उस फॉर्म के अंदर डालनी है. मैं आपको एक बार वो फॉर्म दिखा देती हूँ कि किस तरीके से है, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि आपको क्या क्या टैब्स उसमें भरने हैं. ओके, सो या स्क्रीन विजिबल है मेरी, राइट? या ओके.
सो ये है एक फॉर्म जो आपको फिल करना होगा। इसी तरीके से ये फॉर्म आपको मिलेगा। इसमें 10 जनवरी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लास्ट डेट है सबमिट करने की। इसमें आपको नेम डालना है। उसके बाद आप इसमें आपने ये एक्टिविटी अकेले की है या पूरी टीम के साथ की है, वो ऑप्शन आपको चूज करना है। पूरी टीम मतलब 2 बच्चे थे या 3 बच्चे थे, उस तरीके से ये फिल होगा। टीम मेंबर्स आपके पास अगर थे, सपोज आपने एज अ टीम अगर इसमें फिल किया है, तो आपको लिखना है कि हाँ मतलब मैंने 3 फ्रेंड्स के साथ वो एक्टिविटी की है। 3 लिख के एंड देन आपको उनके नाम लिखने हैं। जैसे मैंने लिख दिया ये मेरी टीम है तो मैंने इनके साथ काम किया है। फिर आप कौन सी क्लास में हो आपको वो इसमें से चूज करना है। फिर आपकी एज, मैं सपोजिटली फॉर एग्जांपल 11 डाल देती हूँ। स्कूल नेम आपका जो भी है वो आप फिल करोगे। आपकी लोकेशन कौन सी है ये आपको चूज करना है। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे कोई भी फ़ोन नंबर, आपको जो भी फ़ोन नंबर मतलब आप यूज़ करते हो वो डालना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाओगे तो ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कि अबाउट योर एक्टिविटी, कि आपकी एक्टिविटी किस चीज़ पे है, वेस्ट मैनेजमेंट पे है या वाटर कंजर्वेशन या एनर्जी, या अगर आपने प्लांट लगाया है तो वो फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी में आता है। क्या वो एक्टिविटी आपकी क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एड्रेस करती है, येस या नो। मेजरली इस पे आप लोगों को येस ही लिखना होगा, क्योंकि अगर इन चारों में से किसी पे भी आपने एक्टिविटी की है तो इट डायरेक्टली रिलेट्स टू क्लाइमेट चेंज एंड एसडीजीज। फिर आपकी एक्टिविटी का टाइटल क्या है। सपोज मैंने पेपर बैग्स बनाए हैं तो मैंने पेपर बैग्स लिख दिया। आप उसमें आप लीडर थे या आपने प्लान भी किया, आपने उसे इम्प्लीमेंट भी किया, मतलब बनाए भी खुद, और या फिर आप मतलब इम्प्लीमेंटर थे अगर आप टीम मेंबर थे, या फिर अगर आपने पूरी ही एक्टिविटी खुद करी है तो आप इन तीनों में से छोड़ के सीधा ये चूज करोगे। फिर आपकी कौन सी डेट को आपने एक्टिविटी की है। जैसे मैंने आज की है तो मैंने ये लिख दिया। अब मेरी आज से लेके 2 दिन की एक्टिविटी थी तो मैंने इसमें 2 दिन बाद की डेट डाल दी, अगर मेरी 2 दिन की थी। फिर उसका बेनिफिट क्या है एनवायरनमेंट को, कम्युनिटी को क्या बेनिफिट है। अब अगर पेपर बैग बनाए हैं तो आपकी कम्युनिटी में अगर आपने दिए हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को या आपके फ्रेंड्स को या आपके रिलेटिव्स को, तो वो बेसिकली प्लास्टिक छोड़ के पेपर बैग यूज़ कर रहे हैं या आपका क्लॉथ बैग यूज़ कर रहे हैं। फिर उसी के बारे में आपको 5 लाइन में बस हमें डिस्क्राइब करना है वो एक्टिविटी आपने क्यों की, कैसे की, किसकी हेल्प से की, और बस ये 3-4 लाइनें आपको इसके बारे में लिखनी है। फिर उस चीज़ की आपको 2 फोटोग्राफ्स यहाँ पे अपलोड करनी है ऐड फाइल करके। फिर जब आप ये सब फॉर्म भर दोगे उसके बाद आपने बस सबमिट क्लिक करना है। तो ये एक छोटा सा मतलब सिनॉप्सिस कह सकते हो। मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ दे रही हूँ कि विंटर स्कूल चैलेंज में आपको क्या करना है। ये लिंक आप लोगों के पास आज नहीं तो कल तक आ जाएगा एंड 10 जनवरी इसका लास्ट डेट है। फिर उसके बाद हमारी एक और एक्टिविटी आती है जो एक्सपर्ट सेशन, जैसे आज वेस्ट पे हुआ है वैसे ही एक वाटर पे होगा, जनवरी के शुरुआत में होगा। उसकी डेट और डिटेल्स भी आपको दे दी जाएंगी। थर्ड एक्टिविटी है आप लोगों ने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया था, तो ये मैं बस आपको बता रही हूँ। जो आपने पोस्टर बनाया या इलस्ट्रेशन बनाया या पोएम लिखा, उसका हम एक बुकलेट निकालेंगे, उसमें आपका नाम जाएगा। आप लोगों को जो भी विनिंग होंगे, जिनकी भी सिलेक्शन होगा, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और ये चीज़ आपको विंटर स्कूल चैलेंज में भी होगी। जैसे आपने अगर इंडिविजुअली किया है तो भी आपको अवार्ड मिलेगा, और अगर वो सपोजिटली 4 बच्चों ने किया है तो चारों को सेम अवार्ड मिलेगा अगर आप जीतते हो तो। ठीक है, फिर ये ई मॉड्यूल में आपकी एंट्रीज आ जाएंगी। और इसके बाद एक अगर हमारे साथ कोई टीचर इस टाइम जुड़े हुए हैं तो उनको मैं बस एक बताना चाहूँगी कि हम लोग आप लोगों को कुछ केस स्टडी के लिए एक डिटेल भेजेंगे। आपको वो केस स्टडी का वो भी एक फॉर्म ही होगा, उसमें आपको भी इसी तरीके से फिल करना होगा कि आपने क्या एक्टिविटी की है या कुछ भी केस स्टडी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो। उसकी गाइडलाइंस और डिटेल्स आपको बहुत जल्द दे दी जाएंगी। तो ये 4 चीज़ें मेजर थी जो आपको मैं बताना चाहती थी कि ये आगे आने वाले 2 महीने में की जाएंगी। और उसके बाद एक हमारा WSDS भी है जो लास्ट ईयर भी हुआ था, उसकी भी डिटेल्स आप लोगों को मेल पे या व्हाट्सएप पे दे दी जाएंगी। सो या दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, and I think I would now like to propose a vote of thanks. I mean, yeah, one second. My system has some issue. One second. Okay, so yeah, so
honorable speaker, Dr. Shilpi Kapoor, waste expert, our most valuable participants, officials from Tata Steel Foundation and TERI. I, Ms. Tanvi Sharma, Associate Fellow, Environment Education and Awareness Area from TERI, would like to extend a very hearty thanks to you all for taking out time from your busy schedules. आप लोग अपनी छुट्टी मिस करके आए हो, आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने अपनी क्लासेस भी मिस करी होंगी, जिसकी भी क्लासेस चल रही हैं. थैंक यू वेरी मच for coming to the session today. I must mention a deep sense of appreciation for Dr. Shilpi Kapoor, waste expert, for being here with us today and apprising all of us about how we can find value in waste. It was indeed a very interesting session, ma'am. And we at TERI would like to take this opportunity to thank our sponsors, Tata Steel Foundation, for giving us this opportunity to implement the project. Besides this, we have been fortunate enough to be backed by a very strong team at TERI, that is Dr. Lillian K. Kahlon, Associate Director, Environment Education and Awareness, TERI, Ms. Neha, Fellow and Area Convener, Environment Education and Awareness, Environment Education and Awareness, TERI, Ms. Monmi Barua, Associate Fellow, Environment Education and Awareness, TERI. So the entire team, including Mr. Ravi Shankar Das, Associate Fellow, is from Environment Education and Awareness area at TERI. Thank you very much, all of you, for being with us. And yeah, over to you, Monmi. Thank you, Tanvi. And I thank you everyone again. And I would request one last time to switch on your video if you haven't. I can only see 6 people. So everyone, if you can switch on your video, we can take a group picture. आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए so that we can take a group picture. Okay, all right. Thank you everyone, and it was again wonderful to have you all. And next time हम लोग अपना तन्वी मैम ने जो बोला है प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा. And next time we will look forward to another more interesting sessions on water. I mean in the coming month, and we will actually see you next year again then. Thank you all. Have a good day everyone. Bye bye. And Merry Christmas and Happy New Year to everyone. Yes. Happy New Year, Merry Christmas, everyone. Bye Take bye. care.